हेलो एस्पिरेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की ताज़ा खबरों से। तो आज है 26 दिसंबर। चलिए मेन पेज पर आते। लेट अस रिमेंबर वन बुक वन पेन वन चाइल्ड एंड वन टीचर कैन चेंज द वर्ल्ड, मल्ला यूसुफजई। ठीक है। नॉलेज एज ए शील्ड 20 years आफ्टर द इंडियन ओशन सुनामी रैवेज मेनी कंट्रीज, इंडिया इज मोर डिजास्टर रेडी। डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर है। द हसीना फैक्टर चांसेस आर लेस। एलिमिनेट डीमोटिवेट। स्क्रैपिंग ऑफ नो डिटेंशन पॉलिसी अंडरमाइंस राइट टू एजुकेशन, गोज अगेंस्ट विजन ऑफ एनईपी 2020। ये भी देख सकते हैं। फॉर फ्रीडम एंड बियॉन्ड सीपीआई वॉज नहीं। द वैल्यू ऑफ इनोवेशन स्कूल स्टूडेंट्स, वो एमएसपी मैटर्स देखेंगे। पैराडाइज ऑफ पॉलिटिक्स। अच्छा, ये देख सकते हैं हम। 2024 का पूरा जुडिशरी के ऊपर मेन मेन जजमेंट्स के रिगार्डिंग दिया है इन्होंने, देखना पड़ेगा। हाउ बॉक्सिंग डे बिकम इम्पोर्टेंट इन द स्पोर्टिंग कैलेंडर। बॉक्सिंग डे। चलिए फिर सुप्रीम कोर्ट से ही देखते हैं। The year 2024 saw significant departure from alleged judicial evasion. In 2025, the Supreme Court, under three Chief Justice of India, will take up several important issues impacting the personal lives, religious beliefs of citizens, as well as their relationship with the state and laws. Some very consequential new legislation are in the pipeline, even as multiple existing laws face challenges in court. देखते। चलो आर्टिकल ही देखते, ये नहीं पढ़ूंगा, मैं बोलूंगा ही नहीं क्योंकि पूरा इसमें क्रक्स ही बता दिया है इन्होंने। Political battles outside the courtroom often defined the legal landscape in 2024. Over the last few years, थोड़ा zoom in करते। The Supreme Court has been criticized for judicial evasion and giving the executive the benefit of doubt in key cases. Legal experts say this has been the court's record wherever there is a government with a strong majority at the center, except when the independence of the judiciary itself is threatened. ओहो। अब ये बोल रहे हैं कि जहां पर गवर्नमेंट स्ट्रांग है सेंटर में, तो वहां पर जनरली जुडिशरी जो है वो थोड़ा सा इवेड करने की कोशिश करती है क्योंकि उनके इंडिपेंडेंस पर भी क्वेश्चन उठता है अभी। However, 2024 saw quiet but significant departure from this apparent trend. The Supreme Court gave verdicts and made interventions in several politically significant cases. It struck down the electoral bond scheme as unconstitutional. एक पहला जजमेंट, बड़ा जजमेंट दिया। बार ट्रायल कोर्ट्स फ्रॉम टेकिंग अप मंदिर मस्जिद केसेस, तो ये भी रोक दिया। इशूड गाइडलाइंस टू कर्ब इलीगल बुलडोजर डिमोलिशंस, तो इलीगल बुलडोजर जो भी डिमोलिशन चल रहे थे। ग्रांटेड बेल टू जेल्ड अपोजिशन लीडर्स, तो इनको बेल अपोजिशन को भी ग्रांट कर दिया। और reined the in the enforcement directorate's vast powers to arrest and reverse the Gujarat government's remission to convicts in the Bilkis Banu Gangrap case. Some of these interventions were long overdue. तो ये काफी सालों तक चलते आ रहे थे, तो अब इन्होंने काफी बड़े बड़े जजमेंट्स भी दिए हैं। As part of efforts to prioritize long pending issues, constitutional benches took up cases such as the Aligarh Muslim University's minority institution status and the policy on taxing industrial alcohol. तो इंडस्ट्रियल अल्कोहल को टैक्स करना चाहिए नहीं, वो और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के रिगार्डिंग स्टेटस भी कि ये किस में आता है। दिस एफर्ट मेड इन पार्ट टू address the judicial evasion criticism was initiated during 45-day tenure of former Chief Justice of India in 2022. It was carried forward by former CJI DY Chandrachud, who retired in November after 2 years as India's top judge. Within a month of assuming charge, CJI Sanjeev Khanna took up the Mandir Masjid dispute that have emerged in various places over the last 2 years. 2 weeks after four people were killed in violence triggered by a court order survey of a medieval mosque in Sambhal, Uttar Pradesh, a bench led by CJI Khanna barred district courts from registering any fresh challenge to the ownership and title of any place of worship or ordering surveys of disputed religious places. तो काफ़ी ये मंदिर मस्जिद वाले डिस्प्यूट्स में काफ़ी इमर्ज आते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों की जाने भी गई है इसमें। और डिस्प्यूटेड रिलीजियस प्लेसेस के रिगार्डिंग भी इन्होंने कुछ ना कुछ तो दिया ही है स्टेटमेंट। 2024 winds down. What does 2025 look like for India's top court? अभी देखते, एक साल 3 CGI, 3 judges will occupy the office of CGI in 2025. CGI Khanna is due to retire on May 13 and Justice Bhushan Ramakrishna Gawai will take over
for 194 days. He will be succeeded by Justice Suryakant in November, who will remain CJ until February 2027. तो एक ही साल में 3 CJ आने वाले हैं हमारे पास 2025 में. Short tenure of CJIs mean the composition of collegium, which makes recommendations for the appointment of judges sees frequent changes. The CJI is also the administrative head of the court, and shorter tenures can limit a CJI's ability to take up important institutional issues, from pendency to other reforms. देखो, अभी प्रॉब्लम क्या आ रहा है, अभी इतना शॉर्ट टर्म क्यों हो रहा है? तो देखा जाए तो पहले तो एक रिकमेंडेशन दिया जाता है सीजीआई के द्वारा कि भाई ये सीजीआई नेक्स्ट होने वाले हैं, एक रिकमेंडेशन रहता है सीजीआई के कि एटलीस्ट इन्हें बनाओ. तो अभी देखा जाए तो ये जो नए सीजीआई बनने वाले हैं उनका काफ़ी जो रिटायरमेंट का एज है वो नज़दीक आ रहा है. अभी ये जो नए सीजीआई है उनका 194 डेज ही रहेंगे, फिर नए सीजीआई आएंगे, फिर वो 2 या 3 साल ही रहेंगे, फिर उसके बाद फिर नए सीजीआई आ जाएंगे. तो अगर अलग अलग इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल इश्यूज की बात की जाए तो वो पेंडेंसी से अभी कितना पेंडेंसी हो सकता है पता नहीं, अभी हर एक का अलग नजरिया रहेगा. Relatively long tenure of the last CJ Justice Chandrachud saw an overall in the digital infrastructure of the court. Virtual courts are now common, including in several high courts. Because of this, courts will have to adapt to greater public scrutiny of judges and their conduct in the coming years. देखो, एक बड़ा डिसीजन लिया गया जस्टिस चंद्रचूड के टाइम में, क्योंकि देखो इनका लॉन्ग टर्म टेन्योर था. ठीक है, पूरा टेन्योर ले गया इन्होंने. और इसमें देखो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर किया कोर्ट का, आपको देखा रहेगा आपने, अभी यूट्यूब पर भी देखते रहोगे आप कि जो जजेस है कैसे सुनवाई वगैरह करते हैं इनकी. तो एक पब्लिक स्क्रूटिनी में आ जाएगा कि भाई ये जजेस कैसे अपना अपना जो मेन कार्य है वो अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं. अभी अभी रिलीजन के रिगार्डिंग देखते हैं. प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये काफ़ी चर्चे में रहा है, इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है मेंस में. गिवन दैट अ लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज टू द 1991 लॉ दैट फ्रोज द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ ऑल places of worship except the disputed structure in Ayodhya as they stood at the dawn of independence is pending before the court. Disputes over the title and religious character of certain mosques allegedly will continue to play out in. अभी ये मसला 2025 में चलता ही रहेगा कि भाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप है या नहीं है. 1991 law has been challenged on the ground that it takes away the power of judicial review by abating claims that existed at the time of its enactment and prohibiting fresh claims that it is arbitrary in retrospectively picking August 1915 47 as the cut-off date for determining the religious character of a place of worship. देखो, अभी ये क्या बोल रहे थे 1991 लॉ में कि जो 1947 15 अगस्त 1947 के बाद की जो भी डे आएंगे तो वो रिलीजियस कैरेक्टर वाले नहीं रहेंगे, तो ऐसा बोल रहे थे ये. अभी इसके पहले जो भी रहेंगे वो रिलीजियस कैरेक्टर वाले हैं. तो इस पर एक सवाल उठाने लग गए कि भाई आप कैसे एक पर्टिकुलर डेट ही रख सकते हो, इसके पहले भी कुछ ना कुछ तो रहा होगा. Other side has argued that the law fortifies the principle of secularism and non-retrogression, which are held to be part of the basic structure of the constitution. देखो दोनों भी बेसिक स्ट्रक्चर अभी किस में आ जाएगा. एक बोल रहे हैं कि भाई आप रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं लगा सकते, और एक बोल रहे हैं कि ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं अलाउ कर रही है. अभी देखते क्या होता है इसमें. हिजाब बैन, इस पर भी काफी ज्यादा चर्चा हो रही थी. इन 2023 टू जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्ड अ स्प्लिट verdict on the legality of Karnataka's government order restricting female students from wearing a headscarf in educational institutions. Justice Sudhanshu Dhulia quashed the ban, framing the issue of matter of choice and personal liberty. Justice Hemant Gupta held that wearing a headscarf is not an essential religious practice that ought to be protected by law. The case will now be heard afresh by 3 judgments. देखो, दो मसले एक हिजाब में. एक तो है पर्सनल लिबर्टी है आपकी, आपको जो मर्जी चाहे पहन सकते हो. और एक होता है कि एसेंशियल प्रैक्टिस. एसेंशियल प्रैक्टिस मतलब क्या? अभी जैसे पगड़ी है, सिख लोगों में पगड़ी कंपलसरी है, एसेंशियल है, मतलब इसके बगैर चलेगा ही नहीं. वैसे ही आप देख सकते हो मुस्लिम वुमेन सभी हिजाब नहीं पहनते, समझ रहे हो, वो एकदम एसेंशियल नहीं है. तो उस पर भी मसला चल रहा है अभी कि पर्सनल लिबर्टी है या एसेंशियल प्रैक्टिस है. तो उस पर अभी सुनवाई होगी. 3 जज बेंच बैठे हैं अभी, देखते हैं अभी क्या होता है. Essential religious practice test. अभी in 2020 the Supreme Court had decided to review its verdict 2018 verdict that held the practice of excluding women from the Sabrimala temple unconstitutional. अभी वुमेन को एक्सक्लूड करना सबरीमाला टेम्पल से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन्होंने बोला है. द रूलिंग दैट कॉज्ड द फुरोर ऑफ वाज sought to be reviewed by a larger bench expanding the premise of the case to how religious practices are to be reviewed judicially. अभी कौन सी रिलीजियस प्रैक्टिस कितना कैसे रिव्यू करना चाहिए वो अभी डिफिकल्ट है. देखो कुछ कुछ टेम्पल्स में अलग अलग एनर्जीज होते हैं, इसलिए अभी ये नहीं बोल सकते कि आप उधर नहीं जाना चाहिए. कुछ कुछ तो ऐसे एनर्जीज रहते हैं कि वहाँ रेस्ट्रिक्ट किया जाता है कि भाई एटलीस्ट मना है, वो वहाँ जाना मना है. ठीक है.
The premise of the pending appeal is to be reevaluated, so the so-called essential religious practice test, a contentious doctrine evolved by the court to protect only those religious practices that are essential to the religion. अभी वही है, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस मतलब क्या? एकदम कोर है रिलीजन के, मतलब उसके बगैर वो रिलीजन का मतलब वजूद ही नहीं रहेगा, इन द सेंस ऐसा कि वो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए ये नया इन्होंने जरिया निकाला है कि एटलीस्ट जो बेसिक टेनेट्स है रिलीजन के वो एटलीस्ट इंटैक्ट रहे। This case will also have an impact on a decade-old challenge by two Parsi women who married outside the community to enter the Tower of Silence and the other religious places and separate pleas seeking the entry of Muslim women to mosque. अभी मुस्लिम वुमेन मॉस्क के अंदर भी नहीं जा सकते, तो इस पर भी अभी मसला चल रहा है। स्टेट एक्चुअली देख रहे तो सभी मॉस्क में वुमेन अलाउड नहीं है, कुछ कुछ मॉस्क में है, अभी मैं नाम नहीं लूंगा पर है, कुछ कुछ मॉस्क में मुस्लिम वुमेन अलाउड है। स्टेट इंडिविजुअल सोसाइटी, आपको शौक लगेगा पर है, फैक्ट है। आप बस अपने आजू बाजू के मॉस्क मत मत देखिएगा, ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। स्टेट इंडिविजुअल सोसाइटी, अभी सिटीजनशिप एक्ट के ऊपर भी काफी ज्यादा मसले चल रहे थे इस पर। देखो ये जो इश्यूज है ना, मैरिटल रेप, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, ये सब इश्यूज इंपॉर्टेंट है मेंस में। ठीक है, इस पर एक एक क्वेश्चन तो बनना ही बनना है, इसमें से कुछ ना कुछ तो एक या दो क्वेश्चन तो आएंगे आएंगे मेरे हिसाब से तो, क्योंकि वो बस बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे थे और ट्रेंडिंग टॉपिक से उठा था यूपीएससी। देखो 20 क्वेश्चन रहते पॉलिटी में, तो मेरे हिसाब से करंट में 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं, एक्चुअली देखें तो पूरा करंट का रहता है, पर ये जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है तो 2 से 3 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं इसमें से, तो 10 या 15 मार्क्स का कुछ भी आ सकता है। द चैलेंज टू द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 इज पेंडिंग बिफोर द कोर्ट। The law introduced as Section 6B of the Citizenship Act 1955 seeks to grant citizenship to a class of migrants belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi, Christian communities, but not Muslims, who entered India before December 2014 from three मुस्लिम मेजोरिटी नेबरिंग कंट्रीज, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। देखो सिटीजनशिप एक्ट क्या बोलता है, उनको सिटीजनशिप मिलेगी जो माइग्रेंट्स ये हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन कम्युनिटीज के हैं, पर मुस्लिम्स के लिए नहीं है। देखो इसका एक मेन रीजन है, आपको लगेगा कि ये नाइंसाफी कर रहे हैं मुस्लिम के अगेंस्ट से, नहीं है। देखो प्रॉब्लम क्या है, ये पूरा टेररिस्ट ग्रुप है ज्यादातर, तो अभी आपने मुस्लिम्स को भी अलाउ किया तो डिफिकल्टी हो जाती है कि भाई कौन से मुस्लिम अच्छे और कौन से मुस्लिम डेंजरस है, तो वो एक डिफिकल्टी, ये फैक्ट है, पर बुरा लग रहा है मुझे, पर एक्चुअली फैक्ट है ये। ठीक है, इसलिए ये नहीं कर सकते, पूरा मुस्लिम्स को इंक्लूड नहीं कर सकते। अभी इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा चल रहा है चर्चा। अभी ये मेरा ओपिनियन नहीं है, ये इनका ओपिनियन है, मेरे ऊपर कुछ केस मत ठोक देना। चैलेंज आर्ग्यूज दैट, पहले से कोर्ट में केस चल रहा है बाय द वे इसमें, इस केस के लिए मेरे नहीं। चैलेंज आर्ग्यूज दैट बाय एक्सक्लूडिंग मुस्लिम्स द अमेंडमेंट वायलेट्स द राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ। अभी ये बोल रहे हैं कि अभी आप एक्सक्लूड कर रहे हो मुस्लिम्स को, तो ये वायलेट कर रहा है इनका राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन और प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म। इन October, the Supreme Court had upheld the validity of Assam Accord, and consequently Parliament's power to specify a cut-off date for peculiar circumstances. However, the Supreme Court also framed the idea of citizenship in terms of fraternity and plurality, which will be key to the challenge to the 19 law. अभी इस पर केस चल रहा है, अभी तो कुछ सुनवाई नहीं होगी है। अभी मुस्लिम्स का भी राइट टू प्रोटेक्शन होना चाहिए, देखते हैं अभी। मैरिटल रेप, ये भी काफी ज्यादा चर्चे में रहा। 2022 द दिल्ली हाई कोर्ट डिलीवर्ड स्प्लिट वर्डिक्ट ऑन द लेगैलिटी ऑफ मैरिटल रेप एग्जीक्यूशन इन क्रिमिनल लॉ। Section 63 of Bharatiya Nyaya Sanhita, Section 375 of Indian Penal Code defines rape and lists 7 notions of consent, which, if petiated, would constitute the offense of rape by a man. But there is a crucial exemption: sexual intercourse or sexual acts by a man with his own wife, the wife not being under 18 years of age, is not rape. तो देखो इसमें ये बोला गया है कि अगर वाइफ 18 ईयर से नीचे नहीं है तो उसके अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो वो रेप नहीं है। दिस एग्जेम्पशन essentially gives legal sanction to a husband to exercise the right to consensual or non-consensual sex with his wife. In October, the center said that while a husband certainly does not have a fundamental right to violate the consent of the wife, terming such violation as rape is excessively harsh and therefore disproportionate. देखो अभी प्रूफ भी कैसे करेंगे कि कंसेंट थी नहीं थी? अभी केसेस तो पहले ही, मतलब लॉ को दूसरी तरफ से भी लेके जा रही है, अगर देखा जाए तो। आप समझ रहे हो मैं किधर जा रहा हूँ, अगर नहीं समझ रहे तो कोई बात नहीं, देखते हैं अभी क्या होता है इस पर। रिव्यू ऑफ एड्स पावर, वाइल ईडी है सॉरी, granting bail to former Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal in the money laundering case in the alleged excise policy scam, the Supreme Court raised questions on the enforcement director's vast powers to arrest. अभी सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर कार्रवाई की कि भाई आपके पास क्या पावर्स है कि आप अरेस्ट कर सकते हो। इट रेफर्ड
a key issue on when an arrest is legally necessitated to a larger bench. After the landmark ruling in Vijay Mandanlal Chaudhary versus Union of India, in which the Supreme Court upheld virtually all powers of the ED, this reference was a setback to the central agency. In a series of separate rulings since the 2022 verdict, the Supreme Court also mandated key procedural safeguards in ED cases. The grounds of arrest must be informed in writing, and the stringent twin conditions for bail can now be relaxed if the accused has undergone a long period of incarceration. अभी इस पर सेपरेट रूलिंग आ गए हैं। अभी वो भी क्या आएंगे देखेंगे हम। अभी रिव्यू ऑफ विजय मंडल चंद्र इज पेंडिंग एंड सीन एज अपॉर्चुनिटी टू सर्कमस्क्राइब द एजेंसीज पावर्स। अभी इंपॉर्टेंट न्यू लेजिस्लेशन, अभी नए नए लॉज क्या आएंगे देखते हैं। पहला आ रहा है साइमल्टेनियस इलेक्शन टू लोकसभा, स्टेट और यूनियन टेरिटरी असेंबली, वन नेशन वन इलेक्शन वाला सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा ये, और इस पर क्वेश्चन आना बनता ही है। अ सेट ऑफ लॉज ऑन सब क्लासिफिकेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट कोटा कुड बी इन द offing as a seven judge bench of the Supreme Court in August. Cleared the decks for states to create sub classifications within the Supreme Court and scheduled tribe quotas in public jobs. Some caste within the schedule can now be accorded wider protections than other through a fixed sub quota. For the first time since Constitution came into being in 1950, the operation of these quotas could be reframed. The Constitution and its promise of equality through affirmative action is now an increasingly fraught area of political rhetoric and action. How states exercise this power will be very important. अभी देखो इसमें क्या बोल रहे हैं कि सब क्लासिफिकेशन होना है शेड्यूल कास्ट का, उसके ऊपर भी चल रहा है चर्चा, वो भी आने की चांसेस है। अभी चैलेंजेस क्या है एग्जिस्टिंग लॉज में। अभी कुछ कुछ नए क्रिमिनल लॉज आ गए। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता संहिताएं 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम एविडेंस वाला हैव रिप्लेस द इंडियन पिनल कोड 1868, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1970 एंड इंडियन एविडेंस एक्ट 72। इसका ही बस इंग्लिश में हिंदी हिंदी में नाम कर दिया है और ईयर चेंज हो गए, और कुछ कुछ लॉज ऐड हो गए हैं इसमें। गवर्नमेंट डिक्लेरेशन इंटेंशन टू डीकोलोनाइज द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ऑब्वियसली ये क्रिमिनल मतलब ये जो लॉस थे वो पूरा ब्रिटिश कालीन थे, तो इसलिए वो चेंजेस करना जरूरी था, और अभी कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो 2024 आ गया करते करते। 1860s के लॉ है ये, समझ रहे, 73 72, 200 साल लग गए हमें। The new laws have several progressive elements, introducing community service as an alternative form of punishment, making summary trial mandatory for petty offences, allowing trials by video conference, and prescribing timelines for speedy trials, including offences for mob lynching and child marital rape. However, questions have been raised about several provisions. देखो काफी सारा प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स भी दिया है, ये सब अच्छी अच्छी बातें बोली कि आगे आगे क्या होने वाला है। मतलब अभी कम्युनिटी सर्विस इंट्रोड्यूस किया है, उसमें अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ पनिशमेंट दिया है इन्होंने। फिर समरी ट्रायल किया है, वीडियो कॉन्फ्रेंस रखे, स्पीडी ट्रायल हो। मॉब लिंचिंग के रिगार्डिंग भी ऑफेंसेस इंक्लूड किया है इन्होंने। फॉर एग्जाम्पल द कॉलोनियल लॉ ऑन सेडिशन प्रीवियसली राजद्रोह इन इंडिया हिंदी हैज बीन रिक्रिस्टेंड देशद्रोह। There are other aspects allowing a police officer 14 days for a preliminary investigation before registering an FIR. The total exclusion of Section 377 of the IPC, which offered protection to men and LGBTQIA plus individuals from non-consensual sexual intercourse, and extension of the देखो LGBTQ के ऊपर भी इन्होंने बोला है, क्योंकि पहले तो ये पहले क्राइम था, तो अभी क्राइम नहीं है, ठीक है। These aspects have challenged before Supreme Court. As the mammoth task of adapting to the new laws progresses, more issues will likely come to the fore. जैसे जैसे नए नए लॉज आएंगे तो और इश्यूज बढ़ने वाले। इस सब सुप्रीम कोर्ट पे कुछ ज्यादा ही लोड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, होम मिनिस्टर अमित शाह told Rajya Sabha last week that Uttarakhand, every BJP ruled state will have a uniform civil code. अभी होम मिनिस्टर अमित शाह ने ऐसा बोला है कि भाई जो भी बीजेपी रूल स्टेट है उनके अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा। उत्तराखंड यूसीसी विल बी इम्प्लीमेंट फ्रॉम जनवरी 2025, अभी इम्प्लीमेंट होने वाला है ये। The law has some contentious provisions. It requires compulsory registration with the state while starting or ending a live-in relationship for heterosexual couples, providing for maintenance to a woman who is deserted by her partner, and prescribes a jail term up to 6 months or for not producing certificate of the relationship. तो अभी लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर ये पूरा मसला चल रहा है, तो ये कितना क्या है 2025 के बाद समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे लॉज बनने वाले हैं आगे। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स यूसीसी एज अ गोल ऑफ स्टेट। द सुप्रीम कोर्ट हैज लॉन्ग बीन अ वोटरी ऑफ द कोड, बट यूसीसी लॉज will be subject to judicial scrutiny. The extent of the state's encroachment on individual personal lives and their right to choose religion will be tested. देखते हैं, अभी लीगल एडिटर है, अच्छे से समराइज किया कि मेजर मेजर कंटेंशियस इश्यूज जो थे सुप्रीम कोर्ट के वो किए इन्होंने।
अच्छा था, पूरा एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू पूरा डिटेल में इन्होंने बताया है। एमएसपी मैटर, क्यों एमएसपी मैटर करती है, देखते हैं। Guaranteeing it is not only essential to prevent farmer distress but also to conserve water, protect public health and preserve national wealth। अभी एमएसपी के ऊपर बोल रहे हैं कि क्या फायदे हो सकते हैं ये इसके। वैसे तो फायदे तो है ही, ऑब्वियस सी बात है। अभी देखते हैं कितने फायदे बताते हैं ये। फर्स्ट, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट एमएसपी इज एंड व्हेन एंड व्हाई इट वाज इंट्रोड्यूस्ड। द टर्म, अच्छा ये उन्होंने पूरा स्टार्टिंग से ही बता दिया कि एमएसपी होता क्या है, जो कि अच्छी बात है। The term itself reveals about MSP. Minimum means the lowest possible, support means assistance, and price means refers to the price that is meant to provide minimal support. This scheme started about 60 years ago. अभी 60 साल पहले मतलब कितना होता है मुझे बताना। When the country was unable to feed its growing population as a safety net for farmers, its promise was that if their crops didn't sell in the market, the government would buy them at least this minimum price। देखो इसमें क्या था अभी, एमएसपी छोटा इन शॉर्ट बताओ क्या। ये फार्मर है, ये मंडी में जाएगा सामान बेचने। मंडी बोलेगी भाई हम 10 रुपये पर केजी लेंगे। फार्मर बोलेगा भाई मार्केट में तो ज़्यादा रेट है, मुझे इतने कम रेट में क्यों दे रहे। तो फिर गवर्नमेंट आएगी बोलेगी हम लेंगे तेरे से 20 रुपये में, डोंट वरी। तो ये मिनिमम प्राइस है, ठीक है। अगर ये ज़्यादा नीचे गिरता है तो एक बेसिक मिनिमम एफर्ट रहना चाहिए कि भाई उसके नीचे तो नुकसान ना हो उसका, ठीक है। ये मिनिमम प्राइस ये गवर्नमेंट बोलती है कि भाई हम ले लेंगे, आप डोंट वरी। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इससे उठाती है, फिर ये बाकी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में जाता है। However, at that time, cost of production for the farmers were not factored in. Instead, the government pushed for increased agriculture production by providing free fertilizer subsidies and chemicals. This created a situation where farmers who were never dependent on the market before became dependent on it. Traders took advantage of this and the farmers were exploited. Slowly, the cost of production, देखो पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड नहीं कर रहे थे एमएसपी में, तो इसकी वजह से क्या हो रहा था मार्केट में। अभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड नहीं कर रहे, मतलब क्या हो गया फिर, वो कम दाम में बेचेंगे। अगर वो इंक्लूड होता है तो ज़्यादा दाम में हो जाएगा ना, तो वो कम दाम में बेच रहे, इसलिए मार्केट और ट्रेडर और लोगों ने फुल एक्सप्लॉइटेशन किया। स्लोली फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज किया गया और एमएसपी भी रिमेन किया। दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन फॉर राइज इन फार्मर सुसाइड, इसलिए मेन रीजन तो ये था, ठीक है। अ रिसेंट रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट कमेटी रिवील्ड 4 लाख फार्मर्स हैव कमिटेड सुसाइड इन द लास्ट 3 डिकेड्स। 30 सालों में 4 लाख फार्मर्स ने कमिटेड किया है। However, if we look beyond the records, the number is actually closer to 7 lakhs। 7 लाख फार्मर लोगों ने सुसाइड किया इसके चलते। Now let's consider the argument by some that farmers in Punjab do not need MSP. The intellectual class and the Punjab government express concern about the depleting groundwater, but no concrete solutions have been offered. It is even cited that it takes 3,000 to 3,005 liters of water to produce just 1 kilogram of rice. This information has been repeated so much that people are fed up. Some claim that groundwater only lasts for another 15 to 20 years for drinking purpose. Therefore, farmer unions have started demanding a guaranteed MSP law for 23 crops, hoping it will lead to the promotion of crop diversification. With guaranteed MSP for these 23 crops, farmers in Punjab and Haryana will encouraged to grow crops that provide better profits than wheat and paddy. This will not only address the groundwater issue but also offer a permanent solution to the problem। देखो आप एमएसपी दो क्रॉप्स को बहुत ज्यादा दे रहे हो, एक व्हीट और एक पैडी है। अगर आपने इक्वली सब में दे दिया जो 23 क्रॉप्स है, अभी दो क्रॉप्स को आप दे रहे हो, तो लोग क्या उगाएंगे। ऑब्वियसली बात है, अगर व्हीट और पैडी को आपको 400 रुपये मिल रहा है और बाकी इसको 100 100 रुपये मिल रहा है, फिर बाकी लोग वो क्यों उगाएंगे। तो मेन रीजन तो वही है। अगर इसके प्रॉफिट अगर अच्छा मिल रहा है बाकी क्रॉप्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। In addition to the MSP guarantee law, promoting crop diversification will significantly reduce electricity consumption in agriculture, potentially cutting it by 60%। अगर हम क्रॉप डाइवर्सिफाई करते हैं, क्रॉप डाइवर्सिफाई मतलब क्या है, बस 2 या 3 क्रॉप नहीं, बहुत ज्यादा क्रॉप्स लगाने लगते हैं, तो इससे जो है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी कम होगा और 60% तक ये कम हो सकता है। This will allow for cheaper electricity for household consumers in Punjab. Further, it will help save groundwater, which is crucial for everyone, including farmers, workers। ठीक है, इट्स फॉरेन एक्सचेंज भी रिड्यूसिंग, इम्पोर्ट भी कम होगा, मतलब चंगा सी, सब चंगा सी, ठीक है। ऑयल एंड पल्सेस, इंडिया स्पेंड नियरली 2 लाख करोड़ ओनली ऑन दिस इम्पोर्ट्स। ऑयल और पल्सेस पे हम 2 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, 2 लाख नहीं, 2 लाख करोड़ खर्च रुपए कर रहे हैं हम इंपोर्ट करने के लिए। अगर यही उगा दिया तो फिर इसका खर्चा भी कम हो जाएगा, इंपोर्ट का कॉस्ट भी कम होगा। Punjab, on the other hand, is capable of producing not just oilseed and pulses, but a wide variety of crops that can make the country self-sufficient। अभी पंजाब के लिए आपको बस ऑयल सीड और ये व्हीट और राइस उगाने के लिए नहीं, जरूरत ही नहीं, बाकी भी बेस्ट एनवायरनमेंट है उनके लिए कि अलग अलग क्रॉप्स भी उगाए जा सकते हैं और हम सेल्फ सफिशिएंट भी बन सकते हैं।
This has already been proven as Punjab's farmers have helped the country overcome food shortages in the past. If the money spent on MSP guarantees were invested wisely, it could ensure a better life for farmers and contribute to the nation's development. तो वही बात है, अगर यही पैसा अगर अच्छे से यूटिलाइज किया रहता तो आज हमारा नेशन अलग रहता और बेटर लाइफ रहती फार्मर्स के लिए. Apart from this, some economists and intellectuals suggest that amount needed to guarantee MSP for crops would be much lower than the sum India spends on oils and pulses imports. Experts have been stated that MSP can be guaranteed for crop with just rupees 20,000 to 50,000 crore. This amount would be a small price to pay compared to the benefits of ensuring stable agricultural system, reducing the contribution of foreign goods. ये क्या बोल रहे हैं? एमएसपी हम गारंटी कर सकते हैं बस 20,000 और 50,000 करोड़ में. हम हमें 2 लाख करोड़ भरने की जरूरत ही नहीं है. 50,000 करोड़ में ही काम हो रहा है और ये छोटी प्राइस रहेगी, सब बेनिफिट्स और स्टेबल भी रहेगा हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम और डिपेंडेंसी भी कम होगी. Furthermore, guaranteeing MSP will help address the growing concerns about health hazards. Reports suggest that palm oil, commonly used in many food products, is processed using dangerous chemicals, which can lead to health issues. देखो पाम ऑयल सबसे डेंजरस है. आप लेज वगैरह जब खा रहे हो ना, आप जरा पीछे देखना उसके कि पाम ऑयल है या शुगर है, मैदा है, देख लेना. मेजर इंग्रेडिएंट्स लिखे रहते हैं उस पे. आप क्या खा रहे हो, इवन आप बिस्किट भी खा रहे हो ना, तो बिस्किट भी बहुत डेंजरस है. पूरा शक्कर ही खा रहे हो इन शॉर्ट. उससे उससे बेटर 1-2 चम्मच शक्कर खा लो. Therefore, guaranteeing MSP would not only protect the livelihood of farmers but also safeguard public health and country's wealth. The government continues to claim that it is providing MSP to farmers, but in states like Bihar, Uttar Pradesh, despite the MSP or paddy being set 2,325 रुपए per quintal, farmers are forced to sell it at prices as low as 1,000 से 1,400 पर क्विंटल. देखो बिहार यूपी में तो अलग ही मसले चल रहे हैं. एमएसपी दिया है 2,300, फार्मर्स को दे रहे हैं बस 1,000 और 1,400 पर क्विंटल. अब ये किधर की नाइंसाफी. और ये यहाँ पर पता ही रहेगा बिहार और यूपी बोला तो कालीन भैया. Similarly, in Rajasthan, the government places a cap on how much paddy is bought about the MSP, forcing farmers to sell the remaining crop at much lower prices. देखो एक कैप रख दिया है कि भाई हम कितना लेंगे गवर्नमेंट, उसके नीचे जो है वो सस्ते में बेचना पड़ेगा इनको क्योंकि नुकसान हो जाएगा फिर. This is not just a problem in Rajasthan. Similar issues exist in Haryana, Madhya Pradesh, and other states. Reports from Organization for Economic Cooperation Development have shown that offering farmers market price support is lower than that required rate. The government has effectively caused the loss of nearly 60 lakh crore to farmers. Farmers का लॉस देखो 60 लाख करोड़ हुआ है. This situation is a major cause of farmer suicide. The OECD report reveals that in the 2023 alone, the country lost rupees 14 lakh crore due to low rates offered to farmers under MSP. The ongoing financial loss has led to farmers being heavily indebted. देखो आप उधारी लेके पूरा ये सब करते हो और आपको उतना अमाउंट भी नहीं मिलता है, तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है और इसकी वजह से फिर ये बर्डन के चलते चलते ही सुसाइड हो रहे हैं. The fact remains that real reason behind the rising debt among farmers is the failure to offer them a fair MSP. मेजर रीजन तो ये है कि आपको फेयर एमएसपी भी नहीं मिल रहा है. आप एमएसपी तो दे रहे हो पर फेयर नहीं दे रहे हो. ये देख रहे हो आप 2,300 बोला है, 1,000-1,400 दे रहे तो कैसा होगा. It is essential for the government to guarantee MSP for crops in order to prevent further harm to agriculture sector and reduce the growing distress among farmers. तो अभी गवर्नमेंट के ऊपर है, कुछ ना कुछ तो इसमें स्टेप्स उठाने चाहिए. Guarantee MSP through law is not only necessary to prevent farmer suicide and reduce the impact of investment, but also to conserve public. Government must take urgent action in this regard. सही है ऐसे. अच्छा लिखा है, बहुत डिटेल में उन्होंने माइन्यूट लेवल पे बताया कि एमएसपी के प्रॉब्लम्स क्या हैं. इसको कंसीडर करना चाहिए, इतने ग्राउंड लेवल रियलिटी अगर दे रहे हैं. एनईपी का देखते हैं हम अभी. एलिमिनेट डिमोटिवेट स्क्रैपिंग ऑफ नो डिटेंशन पॉलिसी. अभी देखते हैं. द वर्ड्स एलिमिनेशन एंड एग्जामिनेशन आर मोस्ट ऑलमोस्ट ऑलवेज इंटरट्वाइंड, स्पेशली इंडिया वेयर एग्जामिनेशंस आर प्रीलिमिनरी एलिमिनेशन टेस्ट, प्रीलिन प्राइमरीली एलिमिनेशन टेस्ट. ठीक है. The Right to Education Act 2009 underlined a different approach. It scraped out the humiliation of elimination from the body politic of examination. It came out with no detention policy. अब no detention मतलब क्या है? पास करते रहो 8th स्टैंडर्ड तक. That was innovative in a country where success is often measured in terms of examination scores. अभी एक इनोवेटिव तो था, पर अगर देखा जाए तो हम अपना सक्सेस भी नंबर के ऊपर ही चलता है. अभी भी आप देख सकते हो, अभी भी आपको पूछेंगे भाई 10th में मार्क्स कितने थे या फिर 12th में मार्क्स कितने हैं, या फिर ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स है, तो उसके ऊपर आपका सक्सेस मेजर कर रहे हो, जो कि डेंजरस है. अभी भी वो हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, डोंट वरी.
After 15 years, much of the radical approach has been diluted. From the next academic year, class 5 and class 7th, 8 standards in government school will be held back or eliminated according to their performance. The move is an extension of the amendment introduced by the अभी देखो अभी नेक्स्ट एकेडमिक ईयर से मतलब क्लास 5 और क्लास 8 जो गवर्नमेंट स्कूल से वहाँ से जो उनके परफॉर्मेंस रहेंगे उसके हिसाब से इनको एलिमिनेट किया जाएगा। पहले 5th में चेक होगा कि भाई क्या चल रहा है और 8th में चेक होगा कि भाई सच में ये उतने लायक है कि 8th स्टैंडर्ड पास होने की, तो वो देखेंगे। When it left the issue of detention to the discretion of state government, NDP was premised on the theory that detention to school dropouts. RT was passed when the dropout rate for students classes 1 to 8 was 42%. Notably for the SC/ST, the percentage was much higher. In 2024, the central government annuals the NDP, the dropout rate has already come down to 12.6%. According to the latest data from UDs, if the decreasing dropout rate stands in favor of NDP, a 2023 report by ESSER which showed that only fourth of the enrolled students in the age group of 14 to 18 can fluently read a class 2 level 2 watches for the contrary. However, the RT was not all about NDP. It was envisioned that the students who failed to pass the exams would be given special care by teachers to achieve the required level of learning. But do the teachers have enough infrastructure to take special care? देखो, नो डिटेंशन पॉलिसी ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत ही बुरी थी। इसका मेन मकसद यही था कि एक एटलीस्ट जो बच्चे कमजोर है एग्जाम मतलब जो भी एकेडमिक्स में, तो उनका स्पेशल केयर लेना चाहिए टीचर्स ने। पर अभी स्पेशल केयर की बात कर रहे हो पर उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या टीचर्स के पास, वो एक क्वेश्चन है। पहले ओवरबर्डन टीचर्स है प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स में, उनके पास हार्डली कोई टाइम रहता है स्टूडेंट के बेसिक नीड्स को देखने के लिए। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, द गवर्नमेंट स्कूल्स बोथ एट द प्राइमरी एंड एलिमेंट्री लेवल आर ग्रैपलिंग विद अ शॉर्टेज ऑफ 8.4 लाख टीचर्स। पहले 8.5 लाख टीचर्स का शॉर्टेज है। Responding to a question in the Rajya Sabha in the just concluded winter session, Minister of State in the Ministry of Education, Jayant Chaudhary, cited a few reasons for dropout, including students' lack of interest and their inability to cope up with the studies. Will detention not aggravate the problem? It is bound to affect the interest of the students, mostly of those who belong to marginalized communities. The imagination of innovative education and universal access as proposed by the national education does not go with the narrative of elimination of detention. तो अभी हमने जो सोचा था कि भाई इनोवेटिव एजुकेशन होना चाहिए, यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए, वो साथ में नहीं चल रहा है अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट आउट किया है कि प्रॉब्लम्स क्या थे। ये डिजास्टर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग है। हम डिजास्टर हम डिजास्टर मैनेजमेंट में देखेंगे लगा तो इधर एनडी में वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है पर मेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, हम देखेंगे ये भी बाद में। अभी ऊपर के देखते हैं हम। वीर बाल दिवस। हैप्पी न्यू ईयर। ये देखो कैंप एरिया रहेगा, ये पुणे का कैंप। सही है, देखने जैसा रहता है कैंप एरिया अगर आप पुणे में रह रहे हो तो। चलिए फिर हो गया मेरे हिसाब से, मिलते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद।